Okay, so we are very quickly revising exercise 3.3, question number 1 and 2 for all those who were not present in the last session and today. Okay, so this is exercise 3.3. They are saying that this is a parallelogram in front of you, ABCD. Now they are asking what is AD equals to. So AD will be equal to BC. Why? Because opposite sides are parallel. So you'll write AD is equals to BC, and then in bracket you will write because AD, opposite sides of a parallelogram are equal. Okay. Next question is angle DCB equals to. So let me mark where is angle DCB. This is angle DCB. And because we know opposite angles of a parallelogram are equal, so opposite to this is angle A. So I'll call this angle as angle DAB. Right? This angle is angle DAB. So angle DCB equals to angle DAB, and the reason is opposite angles of parallelogram are equal. Now OC is equals to, what is OC equals to? That is OA. Why? Because we know that diagonals of a parallelogram, yet they are not equal. They are never equal. So diagonals of a parallelogram, they are not equal, but they bisect each other. That is, they cut each other into equal halves. If this is 2 centimeter, this also has to be 2 centimeter. If this is 3 centimeter, this is also 3 centimeter. So this is how diagonals of parallelogram, they cut into 2 equal halves, right? And now that is measure of angle DAB, this angle, measure of angle DAB, and measure of angle CDA. This angle. What is the sum of these two angles we are asking? So what is the sum of these two angles? We know these two are co-interior angles. If these are parallel lines, and this is acting as a transversal, so these two are co-interior angles. So the co-interior angles, they are always supplementary. But the reason that we will write here is that adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Why am I using this reason? Because we have made this property of a parallelogram. We know this, that these two are co-interior angles. But when we know this, every time in a parallelogram, these angles are equal. So we have named them as adjacent angles in that parallelogram. They'll always be supplementary. Okay. So I'll write here 180 degree, and reason I'll write that adjacent angles of a parallelogram, they are supplementary. Now, this is question number 2 that we are solving. In question number 2, Tejas, beta, why is your camera off? Do I need to tell you every time that keeping your camera on is compulsory? Now, consider the following parallelograms. Find the value of unknowns x, y, and z. So, when I see this parallelogram ABCD, because they have told me that this is a parallelogram already, I know opposite angles of parallelogram are equal. If this is 100, this has to be 100. So how I'll write this? The working of the question will be like 100, yeah, or y equals to 100. Y equals to 100. I'll write it here. Y equals to 100 degree, and bracket me reason I'll write because opposite angles of a parallelogram are equal. Okay. With this reason, this y is 100 we know. Okay. Next part is finding z or x. So I'll find for x first. How will we do that? Shrikant, dekho, 100 plus x will be equals to 180 degree. Can you please tell me the name of the property? Which property have I used here to state this? 100 plus x is equals to 180. Why is that so? Ma'am, the sum of two interior angles is 180. Adjacent, you call them adjacent. So sum of adjacent angles, adjacent means next to each other. They share a common arm, right? So Yes, ma'am. this angle is adjacent to this angle. So these adjacent angles, they are always supplementary in a parallelogram. Ma'am, So x 100 plus, yes, bache? Ma'am, x would be 80. Yes, but I'll have to write the reason here. Adjacent Angles of parallelogram. Parallelogram ke liye na, I write two parallel lines and write GM. Ma'am, So this is how you quickly write parallelogram. Ma'am, is it allowed
in exams? Only depends on your teacher, beta. If she is comfortable with that, I'm okay. Go by what your teacher is saying, school teacher is saying. Okay. Although most of the schools, most of the teachers, they accept it. Okay. Chalo. Next one, 80. How will we find this? X is equals to 180 and 100 transposed behind 180 and getting subtracted. So this will be 80 degree. Got it, beta ji? Got it, ma'am. So if this is 80 degree, what is Z? Can anyone tell me? Ma'am, 100. Ma'am, 80. Z is 100, Ma'am, 80. Shrika. Ma'am, 80. Ma'am, 80. Why 80, Shrika? Ma'am, because I see that side D and B, they both look same. Shrikant, you didn't revise the properties that we did that day. सब लोग को revise है वो properties? अनघा, parallelogram की one property बताओ मुझे जल्दी से. Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. Prisha, next one. You're muted, bacha. Adjacent angles of a parallelogram sum up to 180 degrees. Very good. They are supplementary. Good. Samihan, next property, parallelogram. Samihan, quickly turning the pages around to check for the properties. Tell me. Ma'am, diagonals bisect each other. Okay, Tejas, next one. Sum of all the angles are 360. Is there Ma'am, some sum of special all- property about parallelogram? All the quadrilaterals, they have their total sum as 360 only because there are 4 angles there. Like all the triangles, they have 180 degree their total sum. I say all the quadrilaterals, they have their total sum as 360. So it's nothing special about parallelograms. Can you tell me anything else about the diagonals? Samihan told me that diagonals bisect each other. Ma'am, diagonals are not equal. Very good. Diagonals are not equal in a parallelogram. Good. And any fact apart from all this? Sides, both the pair of sides, they are parallel and equal, right? Opposite sides are parallel and equal. Got it? These were the properties of parallelogram. Shrikant, beta, you have to learn all this. Ma'am, in bacha. the last class, you told one more property that diagonals of a parallelogram bisects the angles also. Beta, that is only true with the rhombus thing. Okay, because it is perpendicularly bisecting each other. No, that is not true with every parallelogram. We'll use that right now. So, Abhi, Shrikant, beta, which Okay, ma'am. property have we used here? Call it this angle A also equals to 80 degrees. Opposite angles of a parallelogram, they are equal. Got it? So you have to watch that video once again. Properties of parallelogram, did we record or not? Ma'am, you said No, that ma'am. the Prisha saying save yes, button. Samihan saying no. Ma'am, you said that the save button didn't get clicked. Nahi, bacha, the properties wala part, where we completed properties of all the Ma'am, quadrilaterals. I've written it in my notebook. So please watch that video once again and read those properties once again, because these properties are very important. If these properties you don't learn by heart, no, तो फिर spontaneously question solve करते हुए mind को strike नहीं करेंगी, तो फिर आपको geometry के questions की cramming करनी पड़ेगी, which is never fruitful. Okay, so be very sure कि आप लोगों को हर property याद हो. So watch that video twice or thrice and keep reading these properties once a day at least for some days. Okay, ठीक है, चलो. This is opposite angles of a parallelogram are equal, इसलिए this is also 80 degrees. Now next one we are doing here is this we are solving. If this is 40, 50, sorry, this has to be 50. Why? What is the property, Shrikant? All the angles of a parallelogram are equal. Very nice, very good. Okay, Samihan, what is the measure of this angle X here? Ma'am, 130. Come again, bacha. Ma'am, 130. 130. Very good. Why? What is the property? Ma'am, adjacent angles are supplementary. Very nice. Anaga, what is the measure of Y here, beta? 130 degree.
Why? Because opposite angles are equal. Very nice. Very good. Okay. What is the measure of this Z, Prisha beta? And 130 degree. Why? They are forming an F. So the property was Ma'am, linear pair. Very nice. The property is linear pair. So this Z and this internal, which was 50, internal angle, which was 50. So this 50 and Z together, they are making one single line. Line means linear, no? So they are making a line together. That means they are linear pair of angles. So they all, and linear pair of angles, they are always supplementary. So if this is 50, this is 180 minus 50, that is 130. Got it, everyone? or not? one more beta. property. Yes, ma'am. And there was one more property where the angles that form a F are equal. Oh, corresponding angles. Yes. वेरी गुड. तो प्रिशा ने देखो मुझे वो 6th का कॉन्सेप्ट याद कराया जो हम 6th में बच्चों को याद करने की ट्रिक देते हैं. दैट इज एफ बनाने वाले एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल. तो देखो ध्यान से बेटा, कौन से एंगल, इफ दीज टू लाइंस जो फ्लैग के वो लग रहे हैं, फ्लैग जैसे लग रहे हैं, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, these both angles which are facing to the same side, no? अगर मैं इस साइड को I am calling this as the eastern, south eastern part, तो इधर भी ये भी साउथ ईस्ट की तरफ भी फेस किया हुआ है. तो दोनों जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं एंगल्स, या फिर जो एफ बना रहे होते हैं, वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं इफ द लाइंस आर पैरेलल. और इन्हें हम प्रॉपर्ली इस मेमोरी ट्रिक के अलावा प्रॉपर्ली इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जानते हैं. So these are corresponding angles. तो अगर प्रिशा ऐसे करना चाहती है तब भी absolutely correct है कि ये angle X and ये angle Z, they are corresponding angles, right? तो with this what we can do, we can use another property as well जो हमने Z बनाने वाली property समझी थी. Z कैसे बनता है देखिए यहाँ पर. Z बनाने वाले angles को क्या कहते हैं? They are alternate interior angles. तो देखो this is a kind of a Z made here, no? Right or not? तो Z बनाने Yes, वाले जो ma'am. एंगल्स होते हैं यहाँ पर ये Y एंड ये Z, ये दोनों के दोनों Z बना रहे हैं ना, तो इन एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. तो उस प्रॉपर्टी से भी ये इक्वल हो जाएगा. आप पहले लीनियर पेयर यूज कर लो, सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी, आप पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करो, भले कॉरेस्पॉन्डिंग वाली यूज करो, तीनों ही इक्वली गुड है, तीनों पे ही फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, क्लियर है? लेकिन रीजन जरूर स्टेट करना विच प्रॉपर्टी आर यू यूजिंग. ठीक है बच्चे, तेजस क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से. सबसे पहले तो ये वाला एंगल विच इज 90 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट और नॉट? Yes, ma'am. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स Yes, कैसे ma'am. बनते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है ना, तो वो जो ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, राइट और नॉट? और हम लोगों ने 6th में ये बात पढ़ी थी कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, है ना? एक्टिविटी भी की थी कि अगर ये दो लाइंस ऐसे है तो द एंगल फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड द एंगल फेसिंग अपवर्ड, दोनों कुछ भी कर लो इक्वली रहेंगे हमेशा. देखिए मैं नीचे वाले एंगल को पतला करना चाह रही हूँ, नैरो करना चाह रही हूँ, इसे एक्यूट एंगल बना रही हूँ. देखो ऊपर वाला एंगल अपने आप जो है वो एक्यूट हो गया है ना बच्चे? अब अगर मैं Yes. नीचे वाले एंगल को ऑब्ट्यूज बनाना चाह रही हूँ तो देखो ऊपर वाला एंगल जो अपवर्ड फेसिंग है वो भी ऑब्ट्यूज हो गया है. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, भले लेफ्ट और राइट में देखो ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. अभी ये दोनों ऑब्ट्यूज लग रहे हैं ना आपको, इन्हें एक्यूट बनाने की कोशिश करें. ये देखो अब ये दोनों एंगल्स एक्यूट हो गए, लेकिन दोनों ही इक्वल है. तो आप जब भी दो लाइंस को कट करते हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस है, वो कहीं बेंड नहीं हो रही है ना, जैसे ये पेन स्ट्रेट है दोनों के दोनों, तो जब भी आप दो स्ट्रेट लाइन से कट करते हो, आप कैसे भी उन्हें टिल्ट करो, हमेशा जो ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल ही होते हैं. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी दिस x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, राइट और नॉट? Ma'am, I'm back. Yes, ma'am. गुड श्रीधर बेटा, गुड. नाउ फीलिंग बेटर? Yes, ma'am. चलो अभी देखिए यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है सबको, जिसके दो एंगल्स अब हमें नोन है, 1 is 90, 1 is 30. तो थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं सब बच्चे. Yes, ma'am. क्या फैक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लिखेंगे y
स्मॉल केस y लिखेंगे, ओके, एंड 30 and 90 for what? 90 for x equals to 180 degree. Got it, Ma'am, beta ji or not? equals 40. Yes, ma'am. So 90 plus 30 is 120. And Yes, this ma'am. 121 subtracted from 180, 60. what do you get? You get 60. 60. So y is equals to 60 degree. Yes, Got it? ठीक है. अब y is equals to 60 आ गया तो आप कोई मुझे बताएगा z का मेजर कैसे निकालेंगे? Can anybody help me in this? Ma'am, 60. Ma'am, by How come? alternate interior. शाबाश, Ma'am, very alternate into. लवली, वेरी गुड. वाई? देखो मैं दूसरे कलर से इसे आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जी बनना चाहिए, है ना? तो देखिए जी बन रहा है क्या वाई और सी के साथ? बन रहा है ना बेटा? तो एंगल y और z दोनों z बनाने वाले एंगल है, इसीलिए दोनों में क्या होगा? दोनों का मेजर इक्वल होगा. तो हम लिखेंगे z is equals to y equals to 1 is equals to 60 degree and the property is alternate interior angles are equal. Got it, beta ji? Yes, Know ma'am. everyone? Yes. Okay. Now question number 4 and 5, they are very simple based on these 3 questions only. So do it by yourself. Now I am moving to question number 3. ठीक है बेटा? 4th और 5th पार्ट सब लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे अब. चलो, we are doing question number 3 now. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if we have to draw one rough parallelogram का figure to observe what are they telling us? This is, they're saying ABCD is a parallelogram, okay? So I have made this ABCD. Always remember, we are going in an order ABCD. It's never like A, B, C and D. You cannot do this, okay? So ABCD is the parallelogram that we have. Then they are saying D plus B, angle D and angle B, they are both equals to 180 degree together. Is this true? No. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle B plus D equals to 180? So that's not true. They are equal. Angle B should be equals to angle D for it to be a parallelogram. Right or not, beta ji? Clear है ना सबको? Clear है ना समीहन? Yes, ma'am. Okay. चले अभी next they are saying AB is equals to DC is equals to 8. So AB is 8, CD is 8, AD is 4, BC is 4.4. बताओ मुझे, can this be a parallelogram, बेटा जी? No, ma'am. No, ma'am. Why not, बेटा जी? Because if the Ma'am, line is because opposite sides of parallelogram should be equal. Exactly. Very good, Samihan. That means समीहन की फ्रेंडशिप तो हो गई भाई क्वाड्रिलेटरल से. बाकी सब अपना अपना धीरे धीरे डिसाइड करो. ओके, गुड समीहन. तो ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल. नो 8 और 8 तो इधर 4 है तो इधर 4 होना चाहिए था, या इधर 4.4 है तो इधर भी 4.4 होना चाहिए था. तो दिस कैन नेवर बी अ पैरेललोग्राम. ओके, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें. Angle A is 70. This is I am writing is 70, and angle C as 65. This I want no Anagha to tell me. Anagha, tell me, beta. no, ma'am, because opposite angles are supposed to be equal. शाबाश. मुझे ऐसा लग रहा है सारे स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप हो गई क्वाड्रिलेटरल्स के साथ. वेरी गुड. तो ये दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल. ओके बेटा जी, चले आगे. अभी नेक्स्ट पार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. कह रहे कोई एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल की ड्रॉ करनी है जहां पे इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. तो ये थोड़ा सोचना है. बताओ हो सकता है क्या? करके दिखाओ मुझे ड्रॉ. जल्दी से सब लोग ट्राई करो.
So the diagram which has got one pair of opposite angles equal but not a parallelogram is a kite. Kite के अंदर adjacent sides, ये वाली side इस side के equal होती है, ये side इस side के equal होती है, और इसी वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है. तो वन पेयर ऑफ एंगल जो है वो आपको इक्वल दिख रहा है ना? तो ये काइट की शेप होती है बेटा, एंड दिस काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस काइट, एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ काइट है. ओके, चलो, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 2:3:2. तो जब भी आपको कोई चीज रेशो में दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उन्हें उन्हीं के रिस्पेक्टिव एक्सिस में इमेजिन कर लेते हैं. जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, इन्होंने इसकी एडजेसेंट साइड्स को 3:2 की रेशो में मुझे बताया है, राइट? तो मैं इमेजिन कर लूंगी कि लेंथ जो है वो 3x है और ब्रेथ जो है वो 2x है, 3:2, राइट? Now find the measure of each of the angles of the parallelogram. आपको ये angles find करने. अरे ओहो, ये angles का रेशो गिवन था, not sides. My bad. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 3x और ये 2x. ओके बच्चे, देखो लॉजिकली भी करेक्ट साउंड करना बेटा. ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है. तो ऑब्ट्यूज एंगल को 3x नाम देना और एक्यूट को 2x. ठीक है, लॉजिकली भी डायग्राम करेक्ट होना चाहिए. नाउ दिस 3x एंड 2x की हेल्प से दे आर आस्किंग यू टू फाइंड ऑल द एंगल्स. कैसे करेंगे फाइंड? हम एडजेसेंट एंगल की कोई प्रॉपर्टी बताएगा मुझे कोई? बताओ तेजस, कैसे? Ma'am, opposite angles are equal, so the other sides will be also 3x and 2x. ऑपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी 3x एंड 2x. लेकिन उससे वैल्यू मेजर किधर पता चला? सही कह रहे हो बिल्कुल कि ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 3x. all the angles equals to 360 degree. सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. और एक मेथड ये भी तो है कि आपको एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी पता है कि दे आर सप्लीमेंट्री. तो 2x + 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए था, राइट और नॉट? हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे वो पैरेललोग्राम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दैट एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary. ठीक है ना बेटा? तो 2x + 3x is 180, तो 5x is 180. X is What is 36. it? 180 by 5. So what is that? 36 degree. तो अगर x 36 है, that is not any of the angles of my parallelogram. So how to find these then? मेरे को पता है एक acute angle is 2x, so that is 2 × 36, which is 72 degrees. राइट बेटा जी? और आप चाहो तो ये 72 निकल आया, तो इसमें से 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर 108. और आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, 3x इज इक्वल्स टू 3 × 36 डिग्री, विच इज 108. दोनों में से किसी भी तरीके से आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो 3x. अब ये तो दो एडजेसेंट एंगल्स निकल आए. इफ दिस इज 72, this has to be 72. If this is 108, this is also 108. Got it everyone or not? लेकिन working should be very nice, very particular, very neat, and with every property that you are writing, every question that you are solving, there has to be the property mentioned by its side. जैसे देखो मैंने यहाँ पे हर स्टेप में the property that I am using, मैं उसके साथ ब्रैकेट्स में उसका रीजन लिख रही हूँ. अगर ज्योमेट्री में आप रीजंस नहीं लिखते हो तो यू डोंट गेट मार्क्स देन. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द प्रॉपर्टीज. ओके, क्लियर एवरीवन? आगे चले. Okay, now they are saying two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. So if let's say this is my parallelogram, I am ignoring the numbers that are written here. ऐसा कुछ given नहीं है क्वेश्चन में. तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, गिवन है, इसके एडजेसेंट एंगल्स दे आर सेइंग दे आर इक्वल. तो इसका मतलब इफ आई एम मेंशनिंग दिस एज x, तो दिस इज आल्सो x, राइट और नॉट?
अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे कोई बताएगा कैसे वैल्यू फाइंड करनी है? एडजेसेंट एंगल्स इक्वल थे तो मैंने दोनों को एक्स वेरिएबल असाइन कर दिया। अभी क्या करूं, कोई मुझे प्लीज हेल्प तो करो इस क्वेश्चन में। Ma'am, adjacent angles sum up to 180, they are not equal. But in this special case, no, they are saying that the parallelogram is having by chance the angles equal. अभी क्या करेंगे? Ma'am, rest of the angles will also be x. Come again, बच्चा. Ma'am, the rest of the two angles will also be measure x. Yes. So all four angles will be x, 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 x. So 180. अभी come again, बेटा. 2x equals to 180 degree. Exactly, lovely, very nice. Because we know adjacent angles, they are actually supplementary. In this special case, they are equal. So let's put x and x and then add both the x's. That is x plus x is 2x and 2x equals to 180 means x is equals to 90. So a parallelogram with adjacent angles equal is a rectangle actually. Right or not, everyone? So ninth के लिए एक टिप दे रही हूँ अभी से, 9th क्लास के अंदर whenever they ask you to prove the given figure as a rectangle, the first step you do is you prove either the opposite sides equal or opposite sides parallel or one pair of side opposite and parallel. ऐसे करके आप उसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हो, देन एक कोई भी एंगल जो है एट द वर्टेक्स आप उसे 90 प्रूव कर देते हो, तो एडजेसेंट एंगल भी 90 हो जाता है उससे और उससे सारे एंगल्स 90 प्रूव हो जाते हैं, तो वो गिवन फिगर जो है वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाती है। तो ये स्टेप्स आपको धीरे धीरे 9 तक याद करने हैं कि जब आपको वो रेक्टेंगल प्रूव करने को कहते हैं तो रेक्टेंगल की डायरेक्टली प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करते, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम में एक एंगल भी अगर 90 होगा दैट विल बिकम अ रेक्टेंगल। ओके एवरीवन और नॉट? ठीक है ना? चले Yes, अभी आगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबका 6th वाला। Each angle 90 Yes, degree ma'am. आ गया and this parallelogram is a rectangle. चले आगे। The adjacent figure hope is a parallelogram. ये रहा hope हमारे पास HOPE. Find the angle measure x, y and z. State the properties you use to find them. तो हमें x, y and z फाइंड भी करना है और प्रॉपर्टीज भी स्टेट करनी है। कौन करेगा मेरे लिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी से? Ma'am, ओके प्रिशा, एक स्टेप कोई भी सॉल्व करो। Ma'am, Z is 30 degrees because it should be 70 minus 40, which is 30 because angle H and angle O are corresponding angles. Angle and x and angle O, they are corresponding angles. Ma'am, angle H and angle O. ये वाला ये वाला No, ma'am, no, ma'am. Ma'am, this one and this one are corresponding. So this one will be 40 plus Z. So it will be 40 plus 30, which is 70. very good. So yes, you can use this if this is 70 degree. Corresponding angles की वजह से, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, corresponding angles. So this has to be 70. 70 में से 40 subtract कर दो, you will get 30 for Z. So this angles here with Z as the variable, ये क्या हो गया? 30 degrees हो गया, right? Very good प्रिशा। अब नेक्स्ट कौन सॉल्व करेगा, जल्दी से बताओ मुझे। समीहान बताओ बेटा। यस बच्चे, यस समीहान, गो अहेड। Ma'am, because 70 degree and the angle opposite to is a linear pair, that's why the angle opposite to 70 is 110 and x and that angle will be equal. So x equals to 110. Very good, very nice. Yes, you can do that. So this is क्या हो गया? This is 110 degree and the reason we have stated first is linear pair of angles and then opposite angles of parallelogram are equal. Okay. अच्छा अभी Tejas, you tell me for y. Ma'am, y is equal to 40 as alternate interior angles are equal. शाबाश सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत उस्ताद हो गए सब क्वाड्रिलेटरल्स में। वेरी नाइस। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किधर बन रहे हैं, जहाँ जी बनता है ना ऐसे, राइट और नॉट? दिख रहा है ना सबको? ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, राइट नो बच्चा जी?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? तो y भी 40 हो जाएगा। सब प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, तो एग्जाम में इनमें से एक पार्ट जरूर आ जाता है, इसीलिए आईज ऑन स्क्रीन, सब लोग अपने पेन्स छोड़कर ध्यान से यहाँ पर सुनो। ओके, ये क्वेश्चंस ना सिर्फ डिफरेंट लग रहे हैं, दे आर नो डिफरेंट। ये बिल्कुल सेम जैसे अभी तक क्वेश्चंस आप सॉल्व करते आए हो वही ही है, सिर्फ वो एक्सेस और वाइज इन्वॉल्व करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे आर सेइंग 3x इक्वल्स टू 18 होगा कि नहीं होगा? ये 3x इक्वल्स टू 18 होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड Yes, ऑफ ma'am. पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। तो स्टेटमेंट बन गई ये तो 3x इक्वल्स टू 18। तो x की तो वैल्यू भी आ गई 6 एक ही स्टेप में, एक x की वैल्यू निकल आई ना इस क्वेश्चन के लिए। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, ये 3y माइनस 1 और ये 26 दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस विल बी 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। तो 3y इक्वल्स टू 27 एंड y इज इक्वल्स टू 9। कोई इशू इसमें किसी को? उन्होंने x और y का आंसर निकालने को बोला था, दिस इज योर आंसर। लेकिन सिर्फ ऐसे लिखकर आओगे तो 3 मार्क का क्वेश्चन में 2 या 1.5 मार्क्स से मिलेंगे। वाई? क्या मिसिंग है समीयन इसमें? Ma'am, properties are not mentioned. एग्जैक्टली, प्रॉपर्टीज मिसिंग है। प्रॉपर्टीज मिसिंग के साथ कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। फुल मार्क्स चाहिए तो याद से प्रॉपर्टीज लिख कर आओ। ओके, चले आगे। सेकेंड पार्ट की कोई देखो ध्यान से समझ के देखो, कोई कर पा रहा है क्या इसको? किसी को समझ में आया कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इधर? कोशिश करो, नहीं आएगा तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। Ma'am, when the diagonals bisect each other, they are divided in two halves. Yes, ma'am. शाबाश, वेरी गुड अनका, लवली। देखिए देखो बेटा, ये 16 और ये x प्लस 1, राइट? ये y प्लस 7 और ये 20। Ma'am, y is equal to 13. तो हम इक्वेशन बना लेते हैं y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। मैंने पहले x प्लस y वाली इक्वेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि इसमें 2 अननोन वेरिएबल थे, तो वैल्यू कैसे फाइंड करते, इसलिए पहले मैंने y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 वाली ली। y यहाँ से 14 आ गया, ठीक है बच्चे। 7 जब ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट करते, अब y 14 है, इसका मतलब x प्लस 14 इज 16। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 14 इक्वल्स टू 16, इसका मतलब x इज, इसे सब्ट्रैक्ट करो ट्रांसपोज करके, Ma'am, x is 2. वेरी गुड। तो x का आंसर 2 आ गया, x इज 2 और y इज 14, यही आंसर है। क्लियर है Ma'am, सबको? Ma'am, y is 13. Ma'am, it's 7. My bad. Thank you so much for the correction. This is 13 and 13 से ये भी इम्पैक्ट होगा, ये 3 और। गुड, वेरी गुड, गुड तेजस। ठीक है बच्चे, चले आगे। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। कोई मुझे प्लीज हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में? किसी को समझ में आया इधर क्या चल रहा है? अच्छा चलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मैं एक हिंट बना देती हूँ, फिर मुझे बताना किसी को समझ में मैम। आया क्या फिर क्या चल रहा है। Ma'am, x is equal to 60. अब देखो, अब किसी को समझ में आया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? Ma'am, x is equal to 70. कैसे? No. Ma'am, x is equal to 60. कैसे? प्रॉपर्टी बताओ, कहाँ कैसे पहुंचे x पर? In black, when adjacent angles are Equals to 10 supplementary. degrees. मैं समझाती हूँ। पहले एवरीवन कीप एन आई ऑन दिस क्लू, CLE पैरेललोग्राम है। यस प्रेशा, गो अहेड एंड ट्राई। Ma'am, angle S will be 60 degree because 120 and 60 will be co-interior angles, adjacent angles are equal. And angle E will be 70 degree because opposite angles of a parallelogram are equal. And then
we'll take 180 minus 60 minus 70 and we'll get x. वेरी गुड, वेरी नाइस कृष्ण, ब्रेवो, गुड। देखो बिल्कुल सही किया प्रिशा ने। ये क्वेश्चन दो पैरेललोग्राम्स का ब्लेंड है ना, तो दो पैरेललोग्राम से स्लोली हम उस ट्रायंगल तक पहुंचेंगे जिसके अंदर एक्स है। देखो रेड पैरेललोग्राम पे आई इज ऑन रेड पैरेललोग्राम एवरीवन, इफ दिस इज 70 दिस हैज टू बी 70 राइट, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल राइट। नाउ इफ दिस इज 120, adjacent angles of a parallelogram they are supplementary, तो उस हिसाब से this is 60 right or not बेटा जी। तो ये एंगल 70 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाऊं आपके लिए। this is E, this is S and here you have X। अब ये जो एंगल है this is 70 डिग्री and this angle is 60 डिग्री। अब ये क्या केक वॉक है हमारे लिए, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से X निकालना है ना। 60 and 70 together is 130, 130 180 में से subtract हो जाएगा, you will get 50। 60 degree is the answer, X का answer। Got it everyone or not? Yes, ma'am. आगे चले। Question number 10 again is very important. They are saying explain how this figure is a trapezium। तो मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से आप किसी भी गिवन फिगर को ट्रेपेजियम फटाफट से कह देते हो। यू प्रूव ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। वो एक पेयर ऑफ साइड्स आप पैरेलल प्रूव कर देते हो तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे जैसे MNKL राइट, LMNK कुछ भी व्हाटएवर, किसी भी ऑर्डर में इसे एक में रीड कर लो। दिस इज दे आर आस्किंग यू टू प्रूव टू बी अ ट्रेपेजियम। कोई हिंट मिल रहा है क्या किसी को कैसे होगा ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल है मैम एंगल, मैम साइड NM and KL are parallel। कम अगेन बच्चा। मैम साइड NM and KL are parallel। कैसा, कैसे पता लग रहा है? ऐसा दिख रहा है तो लिख नहीं सकते ना, ज्योमेट्री में ब्रैकेट में दिख रहा है नहीं कर सकते ना, हमको प्रॉपर्टी बतानी होती है ना। मेरे 10th की एक स्टूडेंट है, वो मुझे बार बार यही बात कहती है, हम दिख तो रहा है। अब दिख तो रहा है कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में दिख तो रहा है, प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे इसकी प्रॉपर्टी हम प्रूफ? ध्यान से देखो बेटा, तेजस मुझे कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना MN, ये जो लाइन है MN और ये LK, ये जो है ये लाइंस पैरेलल है। ये तेजस ने कहा कि दिख रहा है राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, जो एडजेसेंट एंगल्स है आपको सप्लीमेंट्री दिख रहा है। एडजेसेंट एंगल्स तो सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है ना। तो आप लिखोगे बिकॉज द एडजेसेंट एंगल इन दिस गिवन फिगर दे आर सप्लीमेंट्री, M और L प्लस करके दे आर एडिंग अप टू 180। नो, फाइनल आंसर 180 आ रहा है, दे आर टुगेदर। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप? बिकॉज if adjacent angles are parallel are supplementary, lines are parallel। तो MN जो लाइन है वो LK के पैरेलल हो गई and hence it is a trapezium। आ गई बात समझ में बेटा सबको कि नहीं आई? क्लियर है सबको? किसी को ऐसा कोई डाउट जो नहीं आ रही हो बात इसमें समझ में, क्वेश्चन में? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगेन बी पार्ट में वो आपको कह रहे हैं फिगर 3.27 में कि explain how this figure is a trapezium and which of its two sides are parallel। कैसे करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? ट्राई करो इसे। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में, अच्छा कोई ये बेटा इसकी तो फिगर ही नहीं है, सिर्फ 3.26 इसकी फिगर थी वैसे। ये तो क्वेश्चन ही दूसरा है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। फिगर 3.27 इसका पार्ट नहीं है। इन दिस फिगर 3.27 दे आर आस्किंग यू टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल C ओनली। ये फाइंड करने को कह रहे हैं एंड दे हैव गिवन दैट दिस AB इज पैरेलल टू CD।
This AB is parallel to CD. Angle C is Ma'am, 60 degree. Yes, very good. It is 60 degree. Why? ये इसका vice Ma'am, versa नहीं because लगा, adjacent angle. कन्वर्स था ना इसका. यहाँ पर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री थे तो लाइंस प्रूव की पैरेलल, और यहाँ पे लाइंस पैरेलल थी तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव किया. गॉट इट नाउ? आ गया सबको क्वेश्चन 11 समझ में? Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 12 करें. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड F इफ SP इज पैरेलल टू RQ. अगर SP और RQ दोनों पैरेलल हैं Ma'am, P is equal to 50. ओके, बताओ क्या कैसे करोगे समीहन इसे बेटा? समीहन बताओ, कोई तरीका समझ में आ रहा है तो, नहीं तो मैं हेल्प करूं. Ma'am, maybe because adjacent angles are supplementary. क्या बच्चे? समीहन फिर से बोलो बेटा. Ma'am, because adjacent angles are supplementary maybe. देखो मैं आपको दिखाती हूँ. उन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पे 130 मार्क करके दिया ना, और यहाँ पे सिंबल लगा दिया 90 का विदाउट टेलिंग यू दिस इज 90. राइट बेटा, है ना? अब उन्होंने आपको मेजर बोला, इसका फाइंड करो और इसका फाइंड करो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर देना. ये मेरा प्लेग्राउंड है, ये इसके ऊपर में वो क्या रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं तेजस क्रिकेट में? Stumps. स्टम्प्स, राइट, स्टम्प्स. तो ये स्टम्प्स है. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टम्प्स है मैंने लगाए हैं फील्ड में, क्या ये तीनों के तीनों स्टम्प्स आपस में पैरेलल है? Yes, ma'am. या मैं ये कह सकती हूँ ये तीनों ही ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है? Yes. Yes, ma'am. तो जब एक गिवन बेस पे, एक सिंगल बेस पे तीन परपेंडिकुलर्स, दो परपेंडिकुलर्स या ज्यादा परपेंडिकुलर्स जब भी एक ही एंगल पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली वो सारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ना, है कि नहीं बच्चे? आ रही है बात समझ में सबको? इसी फैक्ट को यहाँ क्वेश्चन में यूज करते हैं. फैक्ट क्या है कि परपेंडिकुलर स्टैंडिंग ऑन द सेम गिवन लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? तो ये मेरा वो बेस है ग्राउंड का, बस स्टम्प्स ना उल्टे लटक रहे हैं. ये रहा मेरा एक स्टम्प, ये रहा मेरा सेकंड स्टम्प, और है भी थोड़े छोटे बड़े, है ना? तो ऑब्वियसली बताओ, अगर दोनों स्टम्प्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे ग्राउंड से कि नहीं होंगे? Yes. Yes, ma'am. तो इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि if SP is parallel to RQ which is given to us here, if SP is equals to RQ, that means this angle is 90 degree. Right or not, beta ji? Yes, ma'am. Prisha बच्चे, clear or not? We could have just done it by co-interior angles. Or हाँ, तो adjacent angles. co-interior angles are supplementary, right, है ना? तो आप उससे भी कर सकते हो उसको. co-interior angles are supplementary. मैं तो लॉजिक बिल्ड कर रही हूँ कि whenever you have on a single given line you have lines parallel to each other, तो वो लाइन सबके सब परपेंडिकुलर ही होंगी if one is perpendicular. It's not only about perpendicular बेटा. अगर मैं यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ which are all inclined at 60 degree to each other नहीं, to the baseline. If this is 60, this is 60, this is 60, ये सब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, हो जाएंगी ना? Yes, ma'am. क्यों हो जाएंगी तीनों की तीनों पैरेलल? क्योंकि ध्यान से देखो वो सेम एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वो तीनों पैरेलल ही निकल रही है ना उस बेस से. राइट और नॉट बेटा? तो अब आप इसे दूसरी नजर से देखो तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लग रहा है क्या? ये 60 60 60 एफ बनाने वाले एंगल लग रहा है ना? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हो आप इन्हें. पर लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है, ठीक है?
तो इसीलिए मैंने वो स्टम्प्स वाला केस समझाया। यहाँ पर भी आप इस प्रॉपर्टी को को इंटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो कि ये एंगल एंड ये लाइंस बिकॉज दे आर पैरेलल, तो दिस एंगल एस एंड दिस एंगल आर दे आर सप्लीमेंट्री। तो मैं एस प्लस आर, एंगल एस प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखकर, आर मुझे 90 गिवन है तो एस की वैल्यू निकाल पाऊंगी, ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करना है, एंगल एस इज इक्वल्स टू 90, तो एंगल एस भी 90 हो गया। गॉट इट बेटा जी और नॉट? Yes, ma'am. आप ही देखो, अगर ये भी 90 हो गया तो मेरे जो उन्होंने एस और पी मेजर निकालने को कहा था उसमें से एस तो निकल गया। अब मुझे एंगल पी निकालना है। अब बताओ एंगल पी कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूज कर लो। ऑल द 4 एंगल्स दे आर टुगेदर 360 है ना, तो इसको Yes, एक्स ले लो, ma'am. 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एक्स Ma'am, which is 50. Ma'am, X is 50. इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अब आप क्या करेंगे, 90 प्लस 90 इज 180, वो सब्ट्रैक्ट हुआ, देन वो जो 180 बचा उसमें से 130 सब्ट्रैक्ट हुआ, व्हाट इज लेफ्ट 50, तो एक्स इज 50 डिग्री। राइट और नॉट बच्चे लोग? Yes, Ma'am, we ma'am. can do it. Ma'am, we can do it by adjacent angles or supplementary also. अच्छा, हाँ अच्छा किया समीयन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, नहीं तो ये डाउट रह जाता। चलो देखो बेटा ध्यान से समीयन, adjacent angles are Ma'am, supplementary। I'm not having a doubt. Ma'am, I'm saying that we मैं can do it आपको by that समझा रही way. हूँ, सुनो मेरी बात। adjacent angles are supplementary, इन दो लाइंस पर नहीं लगा सकते। कौन सी लाइन? एस आर और पी क्यू लाइन पर। तो आप 90 प्लस एक्स पे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। व्हाई नॉट? क्यों नहीं लगा सकते? किसी को पता है क्या? Ma'am, lines are Because the lines are not parallel. Yes, because lines are not parallel. Black lines parallel लग रही है क्या समीयन? No, ma'am. लेकिन ये प्रॉपर्टी लग सकती है किधर? इधर। Ma'am, SNR. एस एंड आर नहीं बच्चा, पी एंड क्यू Yes, ma'am. ma'am. यहाँ लग सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइंस पैरेलल। आ रही है ना तेजस, आना का बात समझ में? yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस अब यहाँ से भी निकल सकता था, या तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर लो या यहाँ से यूज करो। ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत सारे रास्ते होते हैं टुवर्ड्स द करेक्ट आंसर, कोई भी फॉलो करो पर प्रॉपर्ली नीटली और प्रॉपर्टीज मेंशन करते हुए करो। ठीक है बच्चे, Yes. तो वी आर डन विद द डे टुडे, लेट्स रैप अप फॉर टुडे। और हम लोग क्या करेंगे अब, हम लोग